Friends, today our topic is psychological factors which affects the physical program. Psychological means affecting or arising in the mind related to the mental and emotional state of a person is called psychological. Factors means circumstances, fact that contribute to result is called factors, which means asking for information, effects, cause. The physical program means physical means relating to body, and programs mean arrangement of workout that things are planned. A teacher acts as a philosopher and a guide to the students. Teachers act as a philosopher. Teachers means a person who teaches, especially in schools. Philosophers mean expert. Guide, a person who shows the way to others. तो टीचर को एक्ट करना होगा एक एक्सपर्ट जैसा और एंड गाइड, और उसको डायरेक्शन देनी होगी किसको? स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को. ही मस्ट नो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो टीचर्स को पता होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. ग्रोथ मीन्स is the progressive increase in the size of the child or the parts of a child. Development means progressive acquisitions of various skills of a child. Child means a young human being. His requirement, उसकी ज़रूरत क्या क्या है? Requirements means need क्या क्या है? At different levels, different mean not same. Levels mean different phases. Stage, अलग अलग स्टेज पर उसकी ज़रूरत क्या है. एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology is the branch of psychology concerned with the scientific study of human learning is called educational psychology. Helps the teachers means ये teachers की मदद करता है to study the ability. Study the ability means capacity. Interest means the feeling of wanting to know. Intelligence means the ability to acquire and apply knowledge of skills. Needs, requires. तो विद्यार्थी की एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी है, उसकी ज़रूरत क्या है. एंड अडॉप्ट डिफरेंट टेक्निक्स. अडॉप्ट्स मीन लीगली टेक, किस तरीके से हम उसको डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाएंगे. डिफरेंट मीन्स नॉट द सेम और अनदर. टेक्निक्स मीन्स स्किल और एबिलिटी ऑफ टीचिंग, किस तरीके से उसको पढ़ाना है. फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. इफेक्टिव मीन्स डिजायर्ड इफेक्ट. Communications means sending or receiving information through speaking, writing, or other ways. The utility of educational psychology for the teachers has been emphasized in both theory and practice of teaching and learning. The utility means the useful, the state of being useful. Educational psychology, branch of psychology concerned with scientific study of human behavior. Teachers has been emphasized in both. Emphasized mean give special importance. किस चीज़ को? Theory means systematic idea intends to explain something, and practice means practicals concerned with actual doing. टीचिंग और लर्निंग में वो किस तरीके की थियरी और प्रैक्टिकल को कम्युनिकेशंस देंगे, इम्पोर्टेंस किस तरीके की देंगे. फैक्टर्स मीन्स ए फैक्ट और इन्फ्लुएंस दैट कंट्रीब्यूट टू द रिजल्ट. Important psychological factors which affects the physical programs are as listed below.
कुछ जो महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन फिजिकल प्रोग्राम्स पर असर डालते हैं, कॉज करते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द एथलीट। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स द प्रोग्राम्स डिजाइन टू मीट योर learning goals, needs, ability, level of fitness, skill level and exercise is called individual difference. Each athlete is unique to oneself. Unique means unlike, एक दूसरे से उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो मेल नहीं खाती हैं। Apart from physiological differences such as height, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस मीन्स रेफर्स टू द बॉडी फंक्शंस। तो अलग अलग जो एथलीट्स हैं उनकी अलग अलग जो है बॉडी फंक्शंस जो हैं वो हैं। दैट इज ए हाइट मीन्स मेजरमेंट ऑफ समवन फ्रॉम हेड टू फुट, दैट इज कॉल्ड ए हाइट। वेट मीन्स क्वांटिटी, तो एक एथलीट का वेट अलग हो सकता है, उसकी हाइट अलग हो सकती है। There are bound to be a psychological differences as well, और उसके साथ साथ bounds mean a boundary, वहाँ पर क्या है, उनके साइकोलॉजिकल भी डिफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग हैं। Some athletes are born strong psychological, और कुछ एथलीट्स जो होते हैं पैदा होते ही फ्रॉम बर्थ उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, in way that related to functions very strong, while others have a weak dispositions, और कुछ लोगों की वीक होता है कमज़ोर। डिस्पोजिशंस हो गया accomplish, fail to achieve। एथलीट्स विद वीक डिपोजिशंस फेल टू अकोमोलिश देयर टास्क, तो जिनकी जो डिपोजिशंस मीन जिनकी अकोमोप्लिश कमज़ोर होती है, साइकोलॉजिकल कमज़ोर होते हैं, वो अपने टास्क जो उनको वर्क दिया गया वो पूरा नहीं कर सकते हैं, वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें। दस इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और इनएविटेबल फिनोमिना, and the teachers or coach has to modify his approach according to the nature of each individual's athletes। इसलिए psychological characteristics that differences from one and another, तो ये जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। इनएविटेबल्स होता है कंपल्सरी, फिनोमिना मीन्स फैक्ट और सिचुएशंस, तो उस सिचुएशंस में टीचर्स और कोच को क्या करना है, हैज़ टू मॉडिफाई हिज अप्रोच। मॉडिफाई मीन्स टू ब्रिंग सम चेंज, इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू द नेचर, जिस तरीके की इन्वायरमेंट है, जिस तरीके का एथलीट्स की कंडीशंस है, उस तरीके से ईच इंडिविजुअल्स एथलीट्स उनको ट्रीट करना होगा। Human personality developed. The human personality is a marvelous, intricate structure. Marvelous means extraordinary. तो जो human personality है means a persons, उसकी personality जो है वो extraordinary है। Intricate means complex है। Structures mean form, frame or organizations। delicately means difficult to handle। woven means add, connect, to attach। of motives होता उत्साहित करना, means motivate to do something। emotions means the feeling of mind। and thoughts means the process of using our mind into a patterns that balance the pulls and pushes। patterns होता है डिजाइन, balances होता है इक्विलिब्रियम।
इन पुल्स एंड पुशेस में, खींचने और धकेलने के बीच में, ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से जो उठक पटक होती है, उसको ध्यान में रखकर हमें बैलेंस बनाना होगा, इक्विलिब्रियम बनाना होगा। इट इज द टोटलिटी ऑफ हिज बीइंग। तो ये टोटलिटी क्या हो गई, मीन्स टोटल, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होंगी। एंड इंक्लूड्स हिज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड टेम्परामेंट मेकअप। और इसके साथ साथ क्या इंक्लूड होगा उसमें, हिज फिजिकल मीन्स रिलेटिंग टू बॉडी, मेंटल्स मीन रिलेटिंग टू माइंड, एंड इमोशनल्स मीन्स फीलिंग, एंड टेम्परामेंट मीन्स वोल्टाइल्स, तेज मिजाज, मेकअप, हिज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव जिसको कहते हैं हम, एंड मेमोरी मीन्स याद, रिमेम्बरेंस, इमेजिनेशंस मीन्स आइडिया, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट्स मीन्स filled with qualities, habits, customs, natures, thoughts and sentiments, sentiments में होता है मूड, ओपिनियन, कॉन्स्टिट्यूट हिज पर्सनैलिटी। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूट्स होता है टू मेक प्रिपेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ह्यूमन बीइंग में उसके एलिमेंट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर बेसिक टू स्पोर्ट्स एक्सेलेंस। पर्सनैलिटी हो गया करेक्टर्स, और ट्रेट्स मीन्स द साइन, फीचर्स, एक्सेलेंस, स्पिरिटी। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड कल्टिवेट दूस पर्सनैलिटी। इसलिए ये ज़रूरी है उनको आइडेंटिफाई करना, मीन्स रिकोगनाइज करना है, एंड कल्टिवेट्स टू डेवलप, ग्रो, मेक दोज पर्सनैलिटीज, इस तरीके की पर्सनैलिटी बनाना, विच आर मोस्ट कंड्यूस मीन्स मेकिंग ए सर्टन सिचुएशन टू परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, कि किसी भी सिचुएशन में वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो स्पोर्ट्स में दे सकें। हैंस पर्सनैलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसलिए पर्सनैलिटी जो है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है किसमें, साइकोलॉजी में। टू ग्रेट एक्सटेंट मीन्स द एरिया कवर्ड बाय समथिंग, determine the result of any athletic output, determines the result of any athletic output। तो उस athletic output means a person trained to compete in sports। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंटेलिजेंसी मीन विजडम, माइंड एंड सेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स मीन ए सिंगल पर्सन। Intelligence is the aggregate mental capacity or energy of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with one's environment। Intelligence ऐसा मीन्स जिसको बुद्धि बोलते हैं हम, एग्रेट होता है रेस, मेंटल मीन्स रिलेटिंग टू, इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं रिलेटिंग टू माइंड। तो उसका मानसिक तरीके से उसकी कैपेसिटी कैसी है, एबिलिटी कैसी है, और एनर्जी मीन स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल्स क्या है। टू एक्ट पर्पसफुली, क्या वो उद्देश्य पूर्ण कोई काम कर सकता है। टू थिंक, क्या वो सोच सकता है। रैशनली मीन्स कोई तर्क दे सकता है। एंड टू डील इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी तरीके से कोई काम कर सकता है। मीन्स वन इन्वायरमेंट, किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी वातावरण में। इंटेलिजेंसी इन्वॉल्व इन अवेयरनेस, अवेयरनेस होती है जागरूकता पैदा करना, और गोल डायरेक्टेड्स, गोल डायरेक्टिव्स होते हैं ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य। एंड हैव वैल्यू मीन्स उसका वर्थ, मीन्स उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। इट इज़ एन एबिलिटी टू अंडरटेक द एक्टिविटीज़। तो इस तरीके की एबिलिटी मीन कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सके। मीन्स टू कमिट टू डू समथिंग दैट आर डिफ़िकल्ट, जो मुश्किल है, हार्ड है, complex, connecting many parts, and which leads to the creation of something new and different।
तो जो किसकी तरफ ले जाती है, क्रिएशंस मीन्स क्रिएट न्यू थिंग्स, ब्रिंगिंग समथिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, न्यू नया चीज़ कोई लाना, एंड डिफरेंट अलग किस्म की, इंटेलिजेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल विच अफेक्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस। तो इंटेलिजेंसी एक ऐसा महत्वपूर्ण करेक्टर निभा सकती है जिसका इफेक्ट मीन्स उसके कॉजेज जो है फिजिकल परफॉर्मेंस पर पड़ सकते हैं। सिंस ऑल स्किल्ड बिहेवियर इज इंटेलिजेंट बिहेवियर, तो स्किल्ड बिहेवियर, स्किल्ड होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, बिहेवियर हो गया उसका कंडक्ट। तो स्किल्ड और बिहेवियर जो दोनों जो काम करते हैं इज इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो वो एक इंटेलिजेंट बिहेवियर इज द बिहेवियर कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग वंस नॉलेज, वो किस तरीके का अपना नॉलेज जो है वो इस्तेमाल करता है। रिलेशनशिप्स मीन स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड बिटवीन स्पोर्ट्स एंड इंटेलिजेंसी कैन नॉट बी डिनाइड, मीन्स जो इंटेलिजेंसी है उसको नकारा नहीं जा सकता है। स्ट्रांगली विश्ड एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स, एटीट्यूड्स होता है थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, individuals mean a single persons, attitudes are about and feelings, attitudes thinking or feeling about something, and thought mean product of thinking and feeling sense, attitudes are often thought to the predict behavior, predict means scientific reasons क्या है उसके, how to he behaves, attitudinal responses are also evaluate in natures, तो attitudinals means feelings जो है, responses are also evaluated means to fix the values in natures in different conditions circumstances। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, इफ ए चाइल्ड सेज आई लाइक रनिंग, अगर बच्चा कहता है मुझे दौड़ना है, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड्स है थिंकिंग और फीलिंग है अबाउट द रनिंग। एंड इफ चाइल्ड सेज आई डोंट लाइक रनिंग, और दूसरा बच्चा कहता है कि मैं रनिंग नहीं करना चाहता हूँ, इट शोज दिस चाइल्ड एटीट्यूड्स टूवर्ड द रनिंग, और उस दूसरे बच्चे का जो एटीट्यूड्स है थिंकिंग और फीलिंग है उस रनिंग के बारे में क्या है। एटीट्यूड्स इन्वॉल्व नॉलेज, नॉलेज मीन इंफॉर्मेशंस, एंड बिलीफ्स मीन्स हैबिट ऑफ माइंड इन विच ट्रस्ट, beliefs, habits, attitudes are developed running or through direct experience and interpersonal communications towards हो गया directions। attitudes involve knowledge, beliefs होता है habits of mind in which trust, interpersonal हो गया involving relations, communications means exchange of informations, positive beliefs means expressed clearly, habit and values means worth concerning physical activity relating to physical result in development of good and positive attitudes, good means better and positive attitudes क्या हो गया, means feeling the of athlete is positive, and concerning physical activity good and positive enabling the athletes to strive hard। तो ये जो एथलीट्स को क्या करना है, स्ट्राइव हार्ड मीन्स कम यूज द फुल एनर्जी, हार्ड मीन्स नॉट इजली, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, अगर उसको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तब। मोटिवेशनल फोर्स, motivational force means someone the condition of being eager to act, motivation is a force
to motivate means प्रोत्साहन देना. A force means the kind of energy to drive which prompts. Drive means operate and control the directions. Prompt means cause. Compels means to force. Energizes the strength an individual to act or behave in a particular manners. Particular manners mean the particular demand of the job, particular reason at a particular time means the particular area or a part of our day, months, extra. Attaining means to succeed. The specific goals means well defined or clear goal. Or purpose means to what to do in the absence of motivations. अगर उसमें मोटिवेशन नहीं है मीन्स कुछ करने का उत्साह नहीं है. आइदर देयर विल बी ए नो लर्निंग, तो वहाँ पर कोई भी सीखने वाली चीज़ नहीं होगी. और एवरी वेरी लिटल लर्निंग, और बहुत कम लर्निंग होगी. एंड द लर्नड एक्टिविटीज़ और स्किल विल बी फॉरगॉटन वेरी सून, और जो उसने सीखा भी होगा, कोई एक्टिविटी सीखी भी होगी, वो जल्दी से उसको उस स्किल्स को, उस एक्सपीरियंस को वो जल्दी से भूल जाएगा. एग्रेशंस ऑफ ह्यूमन. एग्रेशंस क्या होता है? मीन जल्दी गुस्से में आ जाना. ऑफ ह्यूमंस मीन ए सिंगल पर्सन्स. फीलिंग ऑफ एंगर. Aggression is a part of human behavior and is necessary for an individual to live and struggle for higher achievements. Aggressions, ये जो फीलिंग ऑफ एंगर है, वो इंडिविजुअल का एक पार्ट, जिंदगी का एक हिस्सा है. एंड इज नेसेसरी, ये ज़रूरी भी है, फॉर एन इंडिविजुअल्स, एक सिंगल पर्सन के लिए, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, टू रिमेन अलाइव, एंड स्ट्रगल मीन्स make forceful for higher achievements. Higher achievements means thing done successfully with effort. Struggle for supremacy. Struggle हो गई. Make forceful for supremacy. Supremacy means condition of being superior. Dominance means power and influence over others. Excellence in sports. Excellence means the quality of being outstanding. Obviously means understood clearly. Involve aggressions, तो इन सभी में क्या है? इन्वॉल्व होता है. इन्वॉल्व मीन इंक्लूड होती है aggressions, feeling of anger. Aggression in one form or the other is inevitable and inescapable in sports activity. तो एग्रेशन से एक ऐसी चीज़ है, इनएविटेबल्स मीन सर्टन टू हैपन, वो उसमें होगी, एंड इनएस्केबल, और उससे वो बच नहीं सकता, अनएबल टू अवॉइड इट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में. व्हेन हॉस्टिलिटी टेक्स ओवर एग्रेशंस. हॉस्टिलिटी मीन्स अनफ्रेंडलीनेस और अपोजिशंस होगी जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होती है? एग्रेशंस होती है. द सिचुएशन बिकम्स अलार्मिंग, तो उस वक्त जो सिचुएशंस होती हैं वरिंग और डिस्टर्ब करती हैं. एंड इट बिकम्स एन एंटी सोशल बिहेवियर, तब वो क्या करता है? वो एंटी सोशल बिहेवियर्स में कोई काम जो है बिहेव कर देता है दूसरों के साथ. एग्रेशन में हेल्प इन द परफॉर्मेंस. कभी कभी फीलिंग ऑफ एंगर्स जो है वो मदद करता है किसमें? परफॉर्मेंस में. ऑफ एन एथलीट्स, बिकॉज इट अरोजेस द एथलीट टू पुट इन ऑर्डर, तो वो किस में मदद करता है? हार्डर एफर्ट्स करे. रिजल्ट अटेम्प्ट में एफर्ट फॉर द सक्सेस ऑफ द टीम मीन्स अपनी टीम को जीत लाने में वो मदद करे. एथलीट्स मस्ट बी हेल्प टू रिड्यूस एंड कंट्रोल एग्रेशन इन ऑर्डर टू प्ले कॉमली एंड परफॉर्म द बेस्ट. तो एथलीट्स को मदद हो सकती है टू रिड्यूस, वो एग्रेशंस को कम करे, अपने काबू में रखे, इन ऑर्डर टू प्ले, जब उसको खेलना है,
कॉमली शांतपूर्वक शांति के साथ एंड परफॉर्म द बेस्ट, और वो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो दे सकता है, मीन्स डिजायरेबल टाइप और क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है स्पोर्ट्स में दे सकता है। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रेशंस, अप्रोप्रिएट मीन्स सूटेबल और प्रॉपर इन सर्कमस्टांसिस, एग्रेशन जो है वो गेम्स में अलाउडेड है। एज परमिटेड अंडर द रूल्स गवर्निंग द गेम्स, तो गेम्स में जो रूल्स हैं उसमें अलो है। अलो रूल्स गवर्निंग मीन्स रेगुलेशंस रूलिंग हैविंग अथॉरिटी टू कंडक्ट द पॉलिसी। टेंस मीन्स रेगुलरली टू इम्प्रूव द स्किल एंड एनहांस द एफर्ट। इम्प्रूव होता है बेटर, स्किल्स को अच्छा करता है, एंड इन्हांस मीन्स इंक्रीज करता है, एफर्ट्स करने में मदद करता है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हाई और लो लेवल ऑफ एग्रेशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ एंगर्स और कम फीलिंग ऑफ एंगर्स में क्या होता है, विल हैम्पर एंड रिटॉर्ड द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो वो क्या करती है, हैम्पर्स मीन्स डिले, उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स की उसमें कम हो जाती है। अरोजल एंड एक्टिवेशंस, अरोजल होता है मीन्स एक्शन ऑफ ऑन बीइंग अरोज्ड, activations means actions. The term arousals reflect the varying degrees of readiness to perform physically, intellectually or perceptually. तो ये जो टर्म्स अरोजल्स है रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स क्या रिफ्लेक्ट होता है, थ्रो बैक वेरिंग डिग्रीज, वेरिंग होता है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग फुली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, जिसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। किस तरीके से, जैसे फिजिकली तौर पर मीन्स रिलेटिंग टू बॉडी एज अपोज टू द माइंड। इंटेलेक्चुअली मीन्स इन ए वे दैट रिलेट्स टू द इंटेलेक्ट। परस्पिक्टिवली means relating to immediate sensory experience. Activation is a short term change of energy mobilizations. तो activations mean action is a short term change, थोड़ी देर के लिए इसमें तब्दीली हो सकती है, of energy mobilizations. Mobilizations होता है making something moves, movables, and impulse means indicate the truth. Raising of energy means energy को strength को बढ़ाने के लिए above an individual's arousals, action of being aroused. Baseline, baseline हो गए starting points used for comparisons. For a brief period means lasting only for a short time. Arousals and activations are the bodily states. Bodily means relating to body states, and feeling means an emotions state or reactions. Indicate degree to which an athlete is physically and emotionally ready to perform. तो इस तरीके से ये इंडिकेट करता है, मीन्स पॉइंट आउट करता है कि जो एथलीट जो है वो फिजिकली तौर पर इमोशनली तौर पर कितनी तैयारी कर चुका है। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एक्टिवेशंस एंड ओवर अरोजल ऑफ एथलीट may result in a reduction of performance. Over excitements mean that they are more excited than you think is desirable. And over activations means abnormally active, overactive glands and overactive imaginations. Over arousals, anger prone individuals. एंड एथलीट में रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो सकती है, और इवन इन एन इनएबिलिटी टू परफॉर्म एट ऑल, और कई बार ऐसा भी हो सकता है इनएबिलिटी मीन्स अनएबल टू डू समथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता है उस जब वो परफॉर्म कर रहा हो। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए जो ज़रूरी है टू नो, जानना, व्हाट आर द रियल एक्टिवेटिंग फोर्स,
एक्टिवेटिंग फोर्स क्या चीज़ है? दैट पुश एंड पुल, जो हमें धकेल भी सकती है और खींच भी सकती है, एंड एथलीट टू एक्ट फॉर अचीविंग द गोल्स, तो उस गोल को अचीव करने में वो हमारी मदद भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनेक्सिटी। एनेक्सिटी मीन्स वरिंग, फीलिंग ऑफ वरी। एनेक्सिटी मीन्स ए डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। एनेक्सिटी को हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड मीन्स जिसमें उसका मन जो है वो अशांत हो। इमोशनली रेक्टिविटी, इमोशनली मीन्स related to person's emotions. Arousal nervousness, arousal nervousness means anxiety, tension. And unrealistic means impractical, not realistic, and unpleasant state of mind. Unpleasant state of mind हो गया causing discomfort, unhappiness. Mind mean the element of a person that enables them to be aware of the world and their experience, to think and feel, is called mind. NXT is an essential ingredient of a competitive situation, and without certain level of NXT, there cannot be a competitive performance. NXT is an essential. तो essential means important. Ingredients means जो constituents हैं किसके? NXT के। कौन से? जैसे इमोशनल रेक्टिविटी है, अरोजल नर्वसनेस है, अनरियलिस्टिक है, अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं एनएक्सटी के। अगर ये इनग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूंट्स नहीं होंगे तो कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस एंड विदाउट सर्टन लेवल ऑफ एनएक्सटी, तो इससे जो है वो कंपटीशन, जो सर्टन लेवल ऑफ एनएक्सटी होती है कॉम्पिटिशन्स में मदद करती है, तो वहाँ पर वो परफॉर्मेंस भी जो होगी नहीं होगी उसकी। नाइदर टू हाई नॉर टू लो लेवल ऑफ एनएक्सटी, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। इट्स कंड्यूस टू स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, तो इससे क्या होगा, उसकी कंड्यूस मीन्स आउटकम लाइकली, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, स्ट्रेसफुल कॉम्पिटिटिव सिचुएशन बाय मैनेजिंग एनएक्सटी दे वुड फेल टू अचीव देयर गोल्स। तो इस तरीके से अगर वो उस कोप होता है डील करना इफेक्टिवली विद समथिंग डिफिकल्ट, अगर वो एनएक्सटी को अच्छे तरीके से उस स्ट्रेसफुल मीन्स कॉजिंग मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस मीन्स कंडीशंस वेयर सर्कमस्टांसेस हेल्ड बाय मैनेजिंग एनएक्सटी, अगर हम उस एनएक्सटी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, दे वुड फेल टू अचीव देयर गोल्स, तो हम उस गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अटेंशन एंड कंसंट्रेशंस, अटेंशंस एंड कंसंट्रेशंस, अटेंशंस हो गई अप्लाइंग द माइंड टू समथिंग, एंड कंसंट्रेशंस मीन डायरेक्शंस ऑफ अटेंशंस। Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than another. Attention किसी चीज़ पर ध्यान देना एंड उसको कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर हो जाना अपॉन द वन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर, रादर देन अपॉन अनदर, किसी दूसरे पर नहीं। चॉइस और विश as there. It is the process of getting an object or brought clearly before the mind. ये ऐसे प्रोसेस को साफ साफ तौर पर क्लियरली मीन्स किसी को बता देना चाहिए बिफोर द माइंड, मन को कंपटीशन से जाने से पहले। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग मेंटल अलर्टनेस, जिससे क्या होगी कि उस मेंटल अलर्टमेंट्स मीन्स उसका जो मन है वॉचफुल टू मीट इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी होगी उसको वो उसके साथ डील कर सकता है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग मेंटल अलर्टनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस होता है बीइंग प्रिपेयर्ड, एंड एज ए रिजल्ट वन बिकम्स अलर्ट, और जैसे ही कोई उसके सामने सिचुएशन आती है तो वो क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, वॉचफुल हो जाता है। एंड अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ, and tries to exercise one's mental and physical power as effectively as possible, और वो कोशिश करता है कि अपने दिमागी मीन्स माइंड और फिजिकल
पावर को, फिजिकल मीन्स रिलेटिंग बॉडी पावर्स को वो इस्तेमाल करके उसको अचीवेबल कर सके. गिविंग हाई क्वालिटी अटेंशंस टू द स्किल और टास्क ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन इज इम्पॉर्टेंट. हाई क्वालिटी अटेंशंस मीन्स अप्लाइंग माइंड टू समथिंग. तो उस स्किल्स या टास्क मीन्स वर्क को ड्यूरिंग कंपटीशन के दौरान उसका इस्तेमाल करने से उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इफ़ेक्टिव होती है, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर कर सकते हैं. देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच डिस्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस द अटेंशन एंड कंसंट्रेशन विच इन टर्न विल रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस. तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स मीन्स वन हु एक्ट्स during competition which distract means direct someone attentions and reduce, वो कम कर सकते हैं जब हमारी attention और एंड कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, विच इन टर्न विल रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कमज़ोर होगी. मेंटल एबिलिटी इंक्रीज्ड मीन्स, मेंटल एबिलिटी मीन्स द पावर टू लर्न और अटेन नॉलेज क्या है वो इंक्रीज होती है. मेंटल एबिलिटी एंड इमेजिनरी हेल्प द एथलीट्स टू मोल्ड देयर इमोशनल स्टेट. इमेजिनरी होता है मेंटल इमेजेस, मोल्ड होता है टू यूज टू गिव शेप देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को वो शेप दे सकते हैं. हमें इमोशंस हो के अपीलिंग और अरोजिंग इमोशंस. एंड दे अप्रोच द फिजिकल एफर्ट्स, और वो कोशिश कर सकता है अपने फिजिकल एफर्ट्स को इस्तेमाल करने की. सच मेंटल एक्टिविटी एनेबल्स द एथलीट टू इम्प्रूव द एग्जीक्यूशंस. तो ऐसी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, एथलीट्स को मदद करती हैं टू इम्प्रूव, डू बेटर द एग्जीक्यूशंस मीन्स द एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड प्रिशंस ऑफ द गिवन स्किल. प्रिशंस क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ द गिवन स्किल, जो उनको काम, स्किल मीन द एबिलिटी टू यूज वन नॉलेज, और टास्क जो काम दिया गया, वर्क दिया गया, बाय थिंकिंग सोचकर, एंड इमेजिनिंग मीन्स मेंटल इमेजिनिंग मीन्स ए मेंटल इमेज इज एन एक्सपीरियंस दैट ऑन मोस्ट ओकेजन्स. मेंटल इमेजनरी ए क्रिटिकल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस. तो जो मेंटल इमेजनरी है मीन्स ए मेंटल इमेज इज एन एक्सपीरियंस दैट ऑन मोस्ट ओकेजन्स, वो क्रिटिकल कॉम्पिटिटिव, क्रिटिकल कॉम्पिटिटिव्स क्या होंगे, मीन्स ए पार्ट ऑफ योर कंपनी मेकिंग मार्केटिंग प्लान्स, सिचुएशंस, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस टू बूस्ट. essential boost means to increase, and boost means help the fighting spirit, fighting spirit of the courage and determinations expressed in a willingness to fight or struggle. हेल्प जैसे मदद करता है एथलीट्स की टू ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ इन ए बेटर वे, वो अच्छे तरीके से उसको वहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में कर सके, कुछ नया कर सके. मेंटल रिहर्सल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन सर्टनली हेल्प इन इम्प्रूविंग एथलीट्स इमोशनल स्टेट एज वेल एज हिज फिजिकल परफॉर्मेंस. मेंटल परफॉर्मेंस, तो जब रिलेटिंग टू माइंड्स, उसकी जो रिहर्सल्स होती है, रिहर्सल्स मीन्स ए प्रैक्टिस और ए ट्रायल परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले फॉर लेटर पब्लिक परफॉर्मेंस करने से पहले जो रिहर्सल करते हैं हम. सर्टनली हेल्प, वो उसकी, सर्टनली मीन श्योरली वो उसकी मदद करती है इम्प्रूविंग एथलीट्स इमोशंस, बेटर एथलीट्स के इमोशंस को बेटर करने में मदद करती है, एज वेल एज हिज फिजिकल परफॉर्मेंस, और रिलेटिंग टू बॉडी जो उसकी परफॉर्मेंस है उसमें भी मदद करती है. फिजिकल परफॉर्मेंस को हम कह सकते हैं, परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड psycho-cultural factors is called physical performance. Group dynamics, group dynamics means a system of behavior and psychological process of social group is called group dynamics. Sports team is comprised होता है consist and made up. एक जो खेल की टीम बनी होती है वो क्या है, कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें अलग अलग एथलीट्स होते हैं, ईच हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस,
तो ओरिएंटेशंस मीन द एक्शन ऑफ ओरिएंटिंग समवन, एंड परसेप्शंस मीन एबिलिटी टू सी और हियर एंड एट ए टाइम्स, उसी समय। These differences may be interfere with the performance of the teams। तो कई बार क्या होते हैं, जो differences होते हैं, मतभेद होते हैं, interfere means intervene in a situation without invitations, बिना किसी को बुलाए हुए वो मतभेद जो हैं वो पैदा हो जाते हैं टीम में, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में, जिससे क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑफ द टीम्स जो है वो खराब हो जाती है। बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए विल रिजल्ट इफ ईच मेंबर ऑफ द टीम मर्जेस हिज पर्सनल फीलिंग्स एंड एबिलिटी इनटू ए टोटल टीम एफर्ट। तो अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो हर टीम मेंबर्स को अपने जो पर्सनल फीलिंग्स जो हैं, स्पेशली वन दैट इज इन्फ्लुएंसिंग बाय योर ओन इमोशंस, जिसमें आपके अपने इमोशंस जो हैं उनको मर्ज करना पड़ेगा बाकियों के साथ, एंड एबिलिटीज इनटू टोटल टीम एफर्ट। तो वो चीज़ क्या होगी, पूरी टीम को उस एफर्ट्स को, उस कोशिश करने में, टीम एफर्ट्स होती है समथिंग डन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, तो उसको करने में उनको मदद मिलेगी। सक्सेस ऑफ टीम डिपेंड्स ऑन एडजस्टमेंट। तो किसी भी टीम की जो सफलता है वो किस पर डिपेंड करती है, एडजस्टमेंट पर, एक दूसरे को ध्यान में रखा। विद इन हाउ क्लोजली द टीम सीम टू बी वर्किंग एंड फीलिंग टुगेदर, जिससे हमें दिखता है कि क्लोजली, कितने नज़दीकी तौर पर हम टीम में काम कर रहे हैं और कितने एक दूसरे के बारे में हम सोच रहे हैं। ग्रुप डायनेमिक्स एंड परफॉर्मेंस आर दस म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल। तो ग्रुप डायनेमिक्स परफॉर्मेंस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करती हैं। म्यूचुअली मीन्स अकर थ्रू आउट द शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर मिलजुल कर डिसीजन जो है लेने होते हैं। एंड फर्दर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल, स्टेबिलिटी होती है फ्रेमनेस, सॉलिडिटी ऑफ द पर्सनल कंसर्न विद द टीम, जो टीम्स के साथ कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड होते हैं। ए पर्सन हु वुड बी डिस्क्राइब्ड एज ए कंसर्न्ड, वरीड अबाउट द टीम्स। इट हैज़ बीन फाउंड दैट बेटर ग्रुप कोहेशंस, एक अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए ग्रुप कोहेशंस होना जरूरी है। कोहेशंस होता है राइजेस सम group cohesions arises when bonds link members of a social group to one another and to the group so as a whole, that is called a group cohesions, generally tend to produce better performance। generally mean usually, tend होता है regularly, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।